بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 26 مارچ 2021 بروز جمعۃ المبارک 13 شعبان بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی بدلتے حالات، سعودی عرب کے تازہ ترین قانون اور باقی سب خبروں سے بروقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل آپ کے لیے لاتا ہے اتھینٹک خبریں۔ سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس بر وقت پہنچ سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی۔ بات ہوگی کورونا ویکسین کی، بات ہوگی کورونا ویکسین کے بعد پابندیوں کی، اس کے علاوہ بات ہوگی چھٹی والوں کی، بات ہوگی فلائٹس کی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے آج کی پہلی خبر کے ساتھ۔ شاہ سلمان نے سالانہ امتحان عید سے پہلے مکمل کرانے کا فرمان جاری کر دیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سالانہ امتحانات عید الفطر سے پہلے مکمل کرنے کا شاہی فرمان جاری کر دیا۔ رواں تعلیمی سال 1442 ہجری کے تمام امتحانات عید الفطر کی چھٹیاں شروع ہونے سے پہلے مکمل کر لیے جائیں گے۔ سعودی خبرسہ ادارے ایس پی کے مطابق شاہی فرمان کے مطابق پرائمری اسکولوں کے امتحانات منگل یکم رمضان 1442 ہجری مطابق 13 اپریل 2021 سے شروع ہوں گے، جبکہ پرائمری اسکولوں اور نرسری کے طلباء اور طالبات کی چھٹیوں کا آغاز 10 رمضان 1442 ہجری مطابق 22 اپریل 2021 جمعرات سے ہوگا۔ مڈل اور ثانوی اسکولوں کے سالانہ امتحان 6 رمضان مطابق 18 اپریل 2021 اتوار سے شروع ہوں گے، جبکہ مڈل اور ثانوی اسکولوں کے طلباء اور طالبات کی چھٹیوں کی شروعات 17 رمضان مطابق 29 اپریل 2021 کو جمعرات کی حاضری کے بعد ہوگی۔ ایک بڑی اپڈیٹ، سعودی عرب میں کورونا ویکسین کی 37 لاکھ سے زیادہ خوراکیں دے دی گئیں۔ سعودی وزارت صحت نے جمعرات کو بیان جاری کر کے کہا ہے کہ سعودی عرب بھر میں کورونا ویکسین کی 37,38,732 خوراکیں دے دی گئیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,64,200 سے زیادہ ڈوز مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ وزارت صحت نے کورونا ویکسین مہم کا پہلا مرحلہ 17 دسمبر 2020 کو شروع کیا تھا، جبکہ دوسرے مرحلے کا آغاز 18 فروری 2021 کو کیا گیا۔ نئے مرحلے کے دوران کورونا ویکسین سینٹر کا دائرہ پورے ملک میں پھیلا دیا گیا۔ ان دنوں 500 سے زیادہ سینٹرز مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو کورونا ویکسین بالکل مفت فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گے۔ ریسٹورنٹ، باربر شاپس اور بیوٹی پارلرز کے کارکنان کے لیے ویکسین لازمی۔ سعودی وزارت بلدیات و دیہی امور نے ایک دفعہ پھر یاد کروایا ہے کہ ریسٹورنٹ، کیفے، باربر شاپس اور بیوٹی پارلر کے کارکنان کے لیے ویکسین لگوانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اس کے بغیر انہیں ڈیوٹی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پابندی پر عمل درآمد 13 مئی 2021 یکم شوال سے شروع ہو جائے گا۔ العربیہ اور اخبار 24 کے مطابق وزارت بلدیات اور دیہی آبادکاری نے بھی بیان میں بتایا، اگر ان اداروں میں سے کسی ایک کے کارکن نے بھی کورونا ویکسین نہیں لگوائی تو ہر 7 دن بعد ان کو کورونا کی منفی ٹیسٹ کی رپورٹ دینا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو کھیلوں کے سینٹرز ہیں اس میں بھی انڈور اور آؤٹ ڈور میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ داخلہ صرف اسی صورت میں ہوگا جب پی سی آر کا منفی ٹیسٹ ہر 7 دن بعد کروایا جائے۔ اس کے علاوہ وزارت سیاحت نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا کہ ریسٹورنٹ میں بوفے سروسز، خیمے، ہالز اور رمضان کے دوران یہ بند رہیں گے۔ یاد رہے کہ سعودی وزارت صحت نے کورونا ویکسین کے دوسرے مرحلے میں ویکسین سینٹرز کا جال وہ پورے ملک میں پھیلا دیا ہے۔ سعودیوں اور غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو ایک اور بڑی خبر دیتے چلیں گے یہاں پر کہ ریسٹورنٹ، ہوٹل اور مسجدوں میں اعتکاف، افطار بوفے اور اس کے علاوہ سحور بوفے وہ معطل کر دیا گیا ہے۔ ماہ رمضان اور عید الفطر کے دوران احتیاطی تدابیر پر عمل کرانے کے لیے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کی سفارشات پر رمضان کے مقدس مہینے کے دوران ریسٹورنٹ اور ہوٹل میں کسی بھی رمضان بوفے اور اس کے علاوہ مساجد میں اعتکاف اور اس کے علاوہ عوامی افطار اور مساجد میں افطار اور خیموں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس فیصلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مراکز اور شاپنگ مالز کو 24 گھنٹے کے لیے کھولا جائے گا، جبکہ وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت جاری رکھی جائے گی۔ سفارشات کے وہ تناظر میں وزارت اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی نے مساجد میں افطار، سحور وغیرہ کو معطل کر دیا ہے اور اعتکاف کو بھی معطل کر دیا ہے۔ نماز اور عیدگاہ کے لیے جگہوں میں توسیع کی جائے گی، جس پر عمل درآمد کے لیے پیغامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ توکلنا اپلیکیشن پر بھی ڈیجیٹل اقامے کا اجراء ہوگا۔ توکلنا اپلیکیشن میں بھی اب ڈیجیٹل اقامے کا اجراء کر دیا جائے گا۔
वजारत दाखिला और सऊदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दरमियान एग्रीमेंट हो गया। अब आपको किसी को इकामा कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि आपके तवक्कलना एप्लीकेशन पर ही आपके तमाम सरकारी जो डॉक्यूमेंट होंगे वो अवेलेबल होंगे। आप अपने सिर्फ जो तवक्कलना एप्लीकेशन को ओपन करके जब दिखाएंगे वही आपके लिए हर जगह पर एक्सेप्टेबल होगा, चाहे वो चौकी हो, चाहे कोई सरकारी इदारा हो, हर जगह पर उसी कार्ड को एक्सेप्ट किया जाएगा। इस वक्त आपको बताते चलें कि इदारों के दरमियान ताउन का सिलसिला जारी है ताकि एप्लीकेशन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज फराहम की जा सकें, ताकि आप वो तमाम काम आप डिजिटल तरीके से कर सकें जिनके लिए आपको बाहर जाना पड़ता था या कुछ दूसरे तरीके से आपको मुश्किलात पेश आती थीं। एक बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, अबू धाबी ने 12 ममालिक के शहरियों को करंतना की पाबंदी से इस्तिस्ना दे दिया। अबू धाबी महकमा सकाफत और सियाहत ने सऊदी अरब समेत 12 ममालिक के शहरियों को करंतना की पाबंदी से इस्तिस्ना दिया है। अबू धाबी आने वाले मुसाफरों के हवाले से ग्रीन लिस्ट अपडेट की गई है। इसके मुताबिक 12 मुल्कों के मुसाफरों से अबू धाबी पहुंचने पर सिर्फ PCR टेस्ट लिया जाएगा। अलमरात अलयौम के मुताबिक जिन 12 मुल्कों के नाम दिए गए हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, चीन, मोरक्को, आइसलैंड, ब्रुनाई, भूटान, ग्रीनलैंड, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और हांगकांग शामिल हैं। अबू धाबी ने न सिर्फ इन 12 मुल्कों के शहरियों को करंतना से इस्तिस्ना दिया है, बल्कि इन मुल्कों से आने वाले किसी भी मुल्क के बशिंदों को भी इस्तिस्ना में शामिल किया है। छुट्टी के हवाले से कानून के बारे में जो आपके लिए चंद अहम नुकात जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, उसमें सऊदी अरब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और जो समाजी बहबूद की जानिब से आजर और अजीर के मामलात को बेहतर रखने के लिए कवानीन बनाए गए हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुकर्रर करदा कवानीन में गैर मुल्कियों के लिए छुट्टियों का कानून वाज़ेह है, जिसमें सालाना छुट्टी, बीमारी की छुट्टी, ईद और दीगर मुनासिबत की छुट्टियाँ, ज़ाती तकरीब पर छुट्टी और आला इम्तिहान देने के लिए छुट्टी लेना जो है वो शामिल है। सालाना छुट्टियाँ जो होती हैं उसमें सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों को सालाना छुट्टी के लिए 2 कैटेगरी में तकसीम किया गया है, जिसमें ऐसे कारकुन जिन्हें कंपनी के पास काम करते हुए 5 साल नहीं हुए, उन्हें 1 साल के गुजरने पर कम से कम 21 दिन की छुट्टी दी जाती है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जिन्हें मुलाजमत करते हुए 5 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं, उसके लिए 30 दिन की छुट्टी मुकर्रर है। सालाना छुट्टी से पहले कारकुनों को उनकी तनख्वाह देना लाजमी है। इसके अलावा सऊदी अरब में कानून मेहनत के मुताबिक ईद उल फितर के मौका पर कारकुन को 4 दिन की कम से कम छुट्टी दी जाती है, जिसका आगाज़ 29 रमज़ान से होता है। सऊदी अरब के कौमी दिन 23 सितंबर को होता है। इस पर कानून के मुताबिक कारकुन को एक छुट्टी दी जाती है। और इसके अलावा बच्चे की पैदाइश और इस सूरत में 3 दिन की छुट्टी मुकम्मल सैलरी के साथ हासिल करना कारकुन का हक है। शादी के मौका पर कारकुन की शादी के मौका पर उसे 5 दिन की छुट्टी कानूनी तौर पर दी जाएगी। वफ़ात पर कारकुन के खूनी या करीबी रिश्तेदारों में से किसी की वफ़ात पर 5 दिन की सैलरी छुट्टी के साथ लेना आपका हक है। इसके अलावा वज़ारत मेहनत के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले किसी भी कारकुन को बीमारी की सूरत में मुकम्मल तनख्वाह के साथ 30 दिन तक छुट्टी लेने का हक दिया जाता है, ताहम उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लाजिम है, जिसकी तस्दीक वज़ारत सेहत या वज़ारत के मंसूर शुदा हस्पतालों या मेडिकल इदारों की जानिब से जारी की जाए। बीमारी का दौरानिया लंबा होने की सूरत में मज़ीद 60 दिन की छुट्टी 3/4 सैलरी के साथ ली जा सकती है, जो कि वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट है उसके साथ ही मशरूत है। 90 दिन की छुट्टी के बाद भी अगर ज़रूरत हो तो मज़ीद 30 दिन की छुट्टी बग़ैर तनख्वाह के हासिल की जा सकती है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की तरफ। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पाकिस्तान, इंडिया समेत 20 मुल्कों के लिए जो सफरी आरती पाबंदी लगाई गई है, सफरी पाबंदियों से छुट्टियों पर मौजूद हज़ारों गैर मुल्की सफरी पाबंदी के खात्मे, खरूज ओहदा और इकामे की मुद्दत के हवाले से परेशान हैं। इनमें से अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से जो है वो सवालात किए जा रहे हैं, जिसमें से जो है सफरी पाबंदी के हवाले से ज़्यादा सवालात किए जाते हैं कि पाबंदी कब तक रहेगी। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के हवाले से हुकूमती सतह पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर एक तरफ़ा पाबंदी आयद की गई है। पाबंदी का नफाज़ 3 फरवरी 2021 की रात 9 बजे से किया गया था, ताहम इस बारे में हुकाम की जानिब से ताहाल पाबंदी की इख्तिताम की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। वन वे फ़्लाइट्स पर पाबंदी की वजह से फ़्लाइट का शेड्यूल मुतासिर हुआ है, जिससे गैर मुल्की जो छुट्टी पर गए थे मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आ सके। इसके अलावा मौजूदा पाबंदी के बाद ताहाल इस बारे में सरकारी सतह पर कोई इतला मौसूल नहीं हुई कि पाबंदी का नफाज कब तक रहेगा। ताहम अब तक की मालूमात के मुताबिक 17 मई की तारीख दी गई है, जिसके बाद तमाम परवाज़ों की बहाली को होना है। हुकाम का कहना है कि एहतियात के पेश नज़र सफरी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। जैसे ही मुतलका इदारे कोरोना के हवाले से रिपोर्ट जारी करेंगे, पाबंदी के खात्मे के हवाले से वज़ारत दाखिला की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा।
जहां तक वापसी के हवाले से सवाल है तो इस बारे में यही कहा जा सकता है कि जब तक आपका खरूज-ओ-दा बाकी है और अगर सफरी पाबंदी के हवाले से कोई हतमी इतला नहीं मिले तो आप अपने कफील या कंपनी के ज़रिए उसकी मुद्दत में तोसी करा सकते हैं। बढ़ते हैं कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स की तरफ। आपको बताते हैं आज वंदे भारत मिशन के तहत कौन कौन सी फ़्लाइट्स जाएंगी और पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी फ़्लाइट्स जाएंगी। आज कोचन के लिए एक फ़्लाइट है जद्दा से SV3572 और इसके अलावा दिल्ली के लिए 3 फ़्लाइट जाएंगी, एक दम्माम से और 2 रियाद से। कोझिकोड के लिए 3 फ़्लाइट हैं, एक जद्दा, एक रियाद, एक दम्माम से। लखनऊ के लिए भी 3 फ़्लाइट हैं, 2 दम्माम से और 1 रियाद से। और इसके अलावा मुंबई के लिए 2 फ़्लाइट जाएंगी, एक दम्माम और एक जद्दा से। बाकी का स्केड्यूल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज पाकिस्तान के लिए सिर्फ 3 फ़्लाइट जाएंगी, एक एयर ब्लू की जद्दा से लाहौर PA4711 और 2 PIA की फ़्लाइट जाएंगी, एक रियाद से इस्लामाबाद PK9754 और आखिरी फ़्लाइट PK9756 रियाद से सियालकोट के लिए जाएगी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की। हम आपको लेके चलेंगे मज़ीद खबरों की तरफ। कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, नए केसेस में फिर से इजाफा। सऊदी अरब में जुमेरात को तीसरे दिन भी कोरोना के नए मरीज़ों की तादाद में मज़ीद इजाफा हुआ। मरीज़ जो है नए 482 रिकॉर्ड पर आए, 6 अफराद की मौत वाक़ हुई और 360 लोग इससे सेहतयाब भी हुए। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वज़ारत सेहत के मुताबिक जुमेरात को कोरोना के नए केसेस 482 रिकॉर्ड पर आए, जिसके बाद अब कुल मरीज़ों की तादाद 3,86,782 हो चुकी है। 6 अफराद की मौत के बाद कुल मरने वालों की तादाद 6,630 हो गई है। मसाजिद में 10 मिनट के लिए वाज़ की इजाज़त। सऊदी अरब की मसाजिद में वाज़ देने की इजाज़त दी गई है, अलबत्ता दर्स व तदरीस पर पाबंदी बरकरार रखी जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर इस्लामी अमूर दावत और इरशाद शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आले शेख ने मसाजिद में 10 मिनट के वाज़ की इजाज़त दी है। इसके लिए बाज़ाब्ता जो है वो ज़ाब्ता मुकर्रर कर दिया गया है कि वाज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 मिनट तक है, जिससे तजावज़ नहीं करना। मसाजिद की इंतज़ामिया को हदायत कर दी गई है कि तमाम एहतियाती तदबीर और समाजी फासले को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा आपको बताते चले 6 मसाजिद जो हैं मज़ीद आर्जी तौर पर जो है 6 इलाकों में 7 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। सऊदी अरब में जो है जुमेरात को सऊदी अरब के 6 इलाकों में नमाजियों के कोरोना वायरस में मुब्तला होने पर 7 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद कर दी गईं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर ने जुमेरात को बयान जारी करके कहा कि गुज़श्ता 46 दिन के दौरान जो है मसाजिद 364 हैं बंद की गई, जिनमें से 347 मसाजिद को सैनिटाइजिंग और हिफ़्ज़ान सेहत के इंतज़ामात मुकम्मल होने पर खोल दिया गया। मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ेंगे। अमलूज के साहिल पर फंसी 40 डॉल्फिन्स को बचा लिया गया। सऊदी वज़ारत माहौलियात और पानी और ज़राअत ने अमलूज के साहिल पर फंस जाने वाली 40 डॉल्फिन्स को बचाने के लिए इमदादी ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया है। आजल वेबसाइट के मुताबिक मुकामी शहरियों ने इतला दी थी कि उन्हें अमलूज के साहिल पर कई डॉल्फिन्स फंसी हुई नज़र आ रही हैं। वज़ारत माहौलियात के मातहत कौमी मरकज़ बराए अफ़ज़ाइश कुदरती हयातियात और मछलियों की अफ़ज़ाइश के इदारे ने इस हवाले से मुश्तरका ऑपरेशन का प्रोग्राम बनाया और माहिरीन की एक टीम तश्कील दी। अमलूज के साहिल के मुआयने से पता चला कि 40 डॉल्फिन समुद्री तह में बस कर मैंग्रोव्स में आकर फंस गई हैं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा दूसरा चैनल वसीम राना अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पर आपको तमाम शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी सऊदी अरब से रिलेटेड। तो इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।